Good afternoon, students. How are you? I trust that you are enjoying the online classes which are going on nowadays. Due to COVID, we are unable to interact directly, but through online, naturally, we are connecting with each other. And I feel that you are enjoying this technology and the new method of teaching and classes. So today we will be discussing about event management, and the topic of today's discussion will be the management and planning of events. तो इवेंट्स हमारी जिंदगी में रोज आते हैं, रोज कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है, कहीं ना कहीं में इकट्ठे होते हैं। लेकिन वो जो इवेंट होता है, किसी भी फंक्शन में आप जाते हैं, वो एक दिन का काम नहीं होता, उसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है और बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। देयर आर मैनी स्टेक होल्डर्स हु वर्क फॉर दैट। इट रिक्वायर्स ए ग्रेट प्लानिंग ऑल्सो। तो प्लानिंग कैसे होती है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, एंड हाउ टू हैव एन इफेक्टिव event management. So we will discuss in this lecture. You can see the introduction to planning and management of events. So whenever we go on any type of journey, we should know what our destination is. So after the completion of this lecture, the students should be able to, number one, understand an event. What actually is event? So number two, understand the concept of event management. Whenever there is an event, if there is a proper management, then the event will become a very good celebration. So understand the concept of event management. Number three, list down various types of events happening around us. So there are large number of events which are happenings. Events are basically the happenings. So we have to list down various types of events. Then number fourth is list 10 key elements of event management. And our fifth objective is to understand and list 5 steps of event management. So after the completion of this lecture, you should be able to give the answers of any of the question related to these objectives or topics. So it is a very interesting topic which is related to our lives, in our day-to-day life, and let us start it. Now we come to event. Event is a thing that happens to take place, especially one of importance. घटनाएं हमारी जिंदगी में रोज घटती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनकी खास एक पहचान होती है, एक इंपॉर्टेंस होती है, एक खासियत होती है जो हमें हमेशा याद रहती है। तो इस प्रकार की कोई घटना जो घटती है, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। हालांकि इवेंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये इवेंट है जिनको तरफ हमको खास ध्यान देना होता है। इट इज ए प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक और सोशल ओकेजन। Whenever there is such a type of occasion which we plan properly and then we organize, then that is a public or social occasion that comes in the event management. Some of the events are there which come of a sudden in our lives, like certain earthquake or anything like that. They come suddenly, but these are not planned and organized. So planned and organized public or social occasions, they are considered as events which are to be managed. Now the event is something that happens, especially when it is unusual or important. Events are used to describe the things that are happening in a particular situation. These are the basic things of event. But we are more concerned about those events which are properly planned and organized by us. Now, event management is a process of designing and producing events. Events are to happen. Your birthday is going to come. आपका बर्थडे आने वाला है, या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, वो आएगी। कई बार ऐसा हुआ कि आप मौके के ऊपर कोई डिसीजन लोगे, चलो ऐसे करते हैं, एनिवर्सरी आई है तो बाहर जाके पिज्जा खा के आते हैं। वो आपने ऑन द स्पॉट डिजाइन किया, कि प्लानिंग की उसकी। और कुछ ऐसे आपने डिजाइन किया कि टाइमली आपने
एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें अपने पब्लिक गैदरिंग की, सोशल गैदरिंग की, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बुलाया और कहा कि हम एज ए फंक्शन इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एज ए सोशल इवेंट हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सो दैट इज इवेंट मैनेजमेंट, जिसको आप पहले से डिजाइन करते हैं और उस इवेंट को प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा बनाते हैं उस इवेंट को दैट इट बिकम्स मेमोरेबल। तो सच इवेंट्स कैन बी मीटिंग्स, ट्रेड शोज, parties like birthday party, anniversary party, and large many. Your wedding party, your anniversaries, fundraising, fashion shows, and so on. You can just think of example and write down 20 such events that you can design and produce in your notebook. Now we come to a definition of event management based on management studies. Event management is the application of project management to the creation and developments of large-scale events such as festivals, conference, ceremonies, formal parties, concerts. तो इवेंट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन है। कुछ आप जो कर रहे हो, क्रियाशील है, एक एप्लीकेशन है कि लार्ज स्केल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि फेस्टिवल हैं, आपके धार्मिक फंक्शंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेरेमनीज होती हैं, फॉर्मल पार्टीज होती हैं, कंसर्ट्स होते हैं। अब जैसे 550 साल गुरु नानक देव जी का मनाया गया, तो इट वाज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट वर कैरिड आउट, एंड दैट वाज नॉट कैरिड आउट इन अ सिंगल डे. A proper planning was made, a proper budget was established for that, and after that such events took place. So those events were created. Now wedding is one of the important day in the lives of a bride, grooms and their families. So wedding is a very important event, especially in India, where we spend a large amount of money. However, due to COVID, these events has come down. कोविड के कारण काफी इवेंट कम हो गया है, यहाँ तक कि जिन लोगों के इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेसेस थे, जैसे कि मैरिज पैलेसेस वाले हो गए, और उनके साथ जो सब स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी इवेंट मैनेजमेंट के, जैसे घोड़ी वाला हो गया, इसके अलावा कैटरिंग हो गया, टेंटेज वाला हो गया, और उनसे रिलेटेड एंटरटेनमेंट की जो कल्चरल टीम्स हैं वो हो गई, सारे के सारे बिजनेसेस कुछ टाइम के लिए कम हो गए ड्यू टू कोविड, क्योंकि इन दिनों में सोशल गैदरिंग आप कर नहीं सकते, और इवेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल गैदरिंग का। तो वेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, और जिसमें काफी अच्छा इवेंट मैनेजर अगर है तो वो काफी कुछ अच्छा मैनेज कर सकता है, क्योंकि जब जिसकी मैरिज है, ही हिमसेल्फ गोज टू मैरिज पैलेस एंड देन गोज टू कैटरिंग एंड देन गोज टू other dress designers, but an event manager, he says that you do nothing, just give us a package, give us a chance, we will give you all the type of services, right from marriage palace to gurdwara to fere or to pandit ji, and all decorations and all catering and everything will be managed by us. So such a type of events, they are managed. So it has got a great scope and profitability also, and this is one of the most important event which is in the life of Indians. Similarly are the birthday parties, and now a professional event manager is required, that people have got a large number of expectations, everybody want to feel like a VIP during his or her birthday. Then there are large number of theme parties like casino nights, Halloween parties. These are also becoming very much popular in India also. Then there are product launches. अब देखते हैं कि कई बार कार लॉन्च होती है, कोई नया स्कूटर लॉन्च होता है, या कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है किसी अलग अलग कंपनीज का, एंड दे क्रिएट ए कंप्लीट इवेंट, और इवेंट मैनेजर्स को वो हायर करके पूरा का पूरा वेन्यू हायर करके वहां पे कंप्लीट लॉन्चेस करते हैं, ताकि लोगों की प्रेजेंस हो सके काफी ज्यादा वहां पर, मीडिया की प्रेजेंस हो सके, और उनके प्रोडक्ट को अच्छी पॉपुलैरिटी मिल सके, मीडिया कवरेज मिल सके. These are critical for the successful market introduction of some products. A perfect product's presentation might also increase the media coverage. Now we come to planning and management of events. So what are the key elements of event management? Keep these 10 points in your mind. These are the basic key elements
which are to be kept in mind for any type of event management. Number one, understanding objectives. What actually your objective is, what you want to, what event you want to create actually. Establishing a timeline, you should have a fixed timeline that after 15 days, this event has to happen. So today I will have to do this thing, tomorrow this thing, and day after tomorrow this thing, and then one day before that event this thing, and your complete timeline should be established. Then selecting a venue, which is the place where this happening has to be done. ये कहाँ पे करना है आपने? Planning of catering, catering का ध्यान रखना है. Managing budget, कि कितना बजट लगेगा उसके ऊपर. बजट का पूरा पहले बजट बनाना है, फिर उस बजट को प्रॉपर्ली मैनेज करना है अलग अलग सब इवेंट मैनेजर्स के साथ. देन एक्वायरिंग परमिट्स. बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि आप स्वयं नहीं कर सकते, उसको गवर्नमेंट से आपको परमिट्स लेने पड़ते हैं. Sometimes night parties, they have to be taken special permission from the Deputy Commissioner office. Night DJs, they have to be taken special permissions. Even after 10 o'clock, the DJs are not allowed. So some of the events that are to be done in a public places, for that also you have to take permission from the administration. So those permits are to be taken. Then coordinating transportation. Naturally, transportation is also much required at the time, and you should have a sufficient transportation system with you. And coordination and hiring of transportation is very much required. Selecting speakers and guests, definitely you will be calling some VIPs and speakers and other guests. So you have to select whom to be called depending upon the type of event. Arranging equipment and facilities, definitely all the equipments, they need to be arranged like those of electronic systems, your mic, speakers, your DJ systems, sound systems, video recordings, audio recordings, and much more. So even safety equipments. So these are to be arranged timely and are to be placed at the venue very timely. And the 10th and one of the most important is managing risk and developing contingency plan. Risk is always there with every development program. With every event, a risk is attached with it. So in case there is some risk, how you will manage it? If you are using a tentage and you are using catering services also, and you have got a cooks over there, there is a risk of catching fire also. So what is the plan that you have made to manage such a type of risk? What are the mitigation plans that you have got? And in case some emergency happens, what is your contingency plan? Suppose you have got some concert and your amplifier at that time fails due to some electrical pulse or like that. So what will you do at that time? Because the speakers will not be working at that time. So you should have some contingency or some other amplifier placed with you so that you can replace the faulty amplifier with a new one. So that the event must go on. कहानी चलती रहनी चाहिए. Now 5 tips for event management. There are the 5 various steps through which the event management will go successfully. So first thing is to plan and coordinate. Planning and coordinate lays the foundation of a successful event. You need to consider what, who, why, where and when aspects of the event. आपको हमेशा कोई भी इवेंट करना है तो ये 5 चीजें दिमाग में रखनी चाहिए. What, क्या कर रहे हैं, who are going to participate, why they are going to come, and why I am organizing this event, where I should organize this event, and when, at what time, when I should organize this event. These are the basic aspects that you should always keep in mind while planning, and set realistic expectations and also list down the experimental aim to start with. So your expectations should be very much realistic. आपको पता होना चाहिए कि जो चीजें realistic हैं वही होनी चाहिए. Make a good team with differently skilled members for making agendas and preparing schedules. So definitely event management is not a one man's game. It is a joint efforts, a team efforts. An event manager has got a sub team managers, sub stakeholders. अगर आप वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें घोड़ी वाला अलग होगा, आपका डेकोरेशन वाला अलग होगा, आपका कैटरिंग वाला अलग होगा, कुक अलग होगा, इसके अलावा और ड्रेसिंग वाला अलग होगा, बैंड पार्टी अलग होगी. तो ये सब स्टेक होल्डर्स हैं फॉर दैट इवेंट, एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल दोज.
तो डिफरेंटली स्किल्ड मेंबर्स और एजेंडाज उनके साथ शेड्यूल बनाना पड़ता है, प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको पूरी गुड एक टीम बनानी पड़ेगी। देन अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। उसके बाद जो आपको ऑर्डर मिला है, टारगेट ऑडियंस और आपके जो क्लाइंट है उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट एक्चुअली इवेंट दे वांट टू डू, so that should be very much clear to you. Then analyze the cost and prepare a budget. This is the very beginning. This is the, यहाँ बहुत जरूरी है कि पहले उसका कॉस्ट एनालाइज करना है और उसका बजट प्रिपेयर करना है और अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है कि दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज द वे दैट आई विल डू दिस इवेंट। Then prepare an invitation and list down the programs in the event. Then prepare the invitation and send those invitations to those who are to be called. और प्रोग्राम जो है उस इवेंट का प्रॉपर बनाना है आपने और उस प्रोग्राम के अनुसार अपने जो है इनविटेशंस भेजनी है। प्रिपेयर ए डेडलाइन फॉर ईच एक्टिविटी। आपकी जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए आपकी एक डेडलाइन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने वेडिंग एनिवर्सरी को आपने मैनेज करना है, तो डेडलाइन क्या बने कि इस दिन तक मैंने घोड़ी वाले का भी इंतजाम कर दिया है और जो सा मैरिज पैलेस है उसका भी इंतजाम हो गया है, भाई जी का भी इंतजाम हो गया है, पंडित जी का भी इंतजाम हो गया है, डेकोरेशन का भी इंतजाम हो गया है। ये डेडलाइन हर चीज हर एक्टिविटी के लिए करना है। एम्पलीफायर्स का इंतजाम हो गया है, गाने बजाने वाले मंगाने हैं, कल्चरल प्रोग्राम कराना है, तो उसका भी इंतजाम हो गया। देन कोलैबोरेट कंसिस्टेंटली टू एंश्योर टाइमली एक्शंस। तो कोलैबोरेट करना है, सभी लोगों को इकट्ठा करना है ताकि टाइमली कोई एक्शन लिया जा सके। देन स्टार्ट द एक्शन। आपने सब प्लानिंग कर ली, सारी टाइमलाइन बना ली, सारे स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बना ली, बजट बना लिया, अब एक्शन शुरू करना है। This is the time when you will have to divide your enthusiasm into too many ideas. This is critical stage of the event where key things like the date, venue, and the speaker and the stage. You have to decide all these things and you have to start working. Get approval of the budget. जो बजट आपने बनाया था उसका अप्रूवल लीजिए अपने क्लाइंट से, या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से वो अप्रूवल लीजिए। स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन ऑन साइट लाइक ट्विटर, फेसबुक एक्सेट्रा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग आप शुरू कर दीजिए। लाइक सोशल मीडिया तो आजकल व्हाट्सएप है, ट्विटर है और भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो सी है बैनर्स, और आपके डिपेंड करता है कि किस टाइप का इवेंट है, और ईमेल्स के थ्रू इनवाइट करना, ये सारे कार्रवाई आप शुरू कर दीजिए। कोलैबोरेट विद द टीम टू एंश्योर दैट द प्लान्स आर ऑन ट्रैक। और टीम के साथ पूरा कोलैबोरेट कीजिए ताकि जो प्लान्स हैं आपके वो सारे के सारे ऑन ट्रैक चल रहे हैं। उसको लगातार मॉनिटर करते रहिए कि हर चीज अपने अपनी जगह पे है, सभी जो सब स्टेक होल्डर्स हैं अपने अपनी जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। प्लान ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स। ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट प्लान कर लीजिए। सीक स्पेशल परमिट्स फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। जो हमने प्लान किया था कि इन चीजों के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, तो उनको लिए आप एप्लीकेशंस मूव कर दीजिए और उसको भी ले लीजिए। Now stay active 24 to 36 hours before an event. अब इवेंट आने वाला है आपका, तो 24 से 36 घंटे से पहले बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। ऐसा नहीं है कि मौके के ऊपर आकर आपने इवेंट को करना शुरू किया, 1 या 2 दिन पहले 24 to 36 आवर्स पहले पूरी तरह से आपको एक्टिव हो जाना है उस इवेंट के लिए। If you utilize this time effectively, your event will be a success. Then your event can be a great success. Measure the execution of your plan. Collaborate with all the stakeholders, sponsors, speakers, guests, and got your team members. Get final approvals from the vendor of catering, fireworks, decoration, etc. before 24 to 36 hours. So 24 से 36 hours के बीच में आपने जो चेकलिस्ट बनाई हुई है फाइनल, हर एक स्टेक होल्डर की, हर एक सब इवेंट मैनेजर की, उन सबसे फाइनल अप्रूवल ले लीजिए। सब चेकलिस्ट आप टिक करते रहिए, ये सारे काम कंप्लीट हैं, हो चुके हैं। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ गेस्ट हु रिस्पॉन्डेड विद RSVP। पूरे के पूरे गेस्ट की जो है एक लिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए। मेक ए लिस्ट ऑफ टेबल एसेसरीज लाइक पेन, नोटपैड, ब्रोशर्स, बोतल ऑफ वाटर एक्सेट्रा। तो अगर कोई आपकी मीटिंग है, उस टाइप के कोई इवेंट है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेन, नोटपैड, जो चीजें चाहिए उसकी आपकी लिस्ट बनी होनी चाहिए। जिस प्रकार का इवेंट है और उसमें जिन जिन चीजों की एसेसरीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो सारी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए।
Ensure all activities are running on time, including transportation arrangement. Remind VIPs about the event and have volunteers to guide them to the event. तो VIPs को दोबारा से आप एक बार रिमाइंड कीजिए कि हमारा इवेंट आ रहा है और उनको गाइड करने के लिए वॉलंटियर्स भी लगाइए. Confirm venue arrangements like lights, decorations, volunteers, security, etc. और वेन्यू की जो अरेंजमेंट्स आपने की है उसको कंफर्म कर लीजिए कि हर चीज अपनी अपनी जगह पे लग रही है या लग चुकी है. प्रिपेयर ए मिनट बाय मिनट प्लान ऑफ द इवेंट. और उस इवेंट का मिनट बाय मिनट प्लान कीजिए, चाहे वो इवेंट 1 घंटे का है, 2 घंटे का है या 4 घंटे का है, आपके पास मिनट बाय मिनट उसका प्लान होना चाहिए. एंड हाउ टू मैनेज फाइनल डे. अब आपका आखिरी दिन आ गया, ये आपका टेस्ट, लिटमस टेस्ट डे है कि जब आपके इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे और आज वो इवेंट का दिन आ गया. आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क you are anxiously waiting for the event to start. This is the time to ensure that all things are there and working as planned. Don't assume take control of things on the day of the event. ऐसा मत सोचिए कि हम उसी दिन सब कुछ कंट्रोल करेंगे. आपने सब कुछ जो भी ड्यूटीज बांट रखी हैं, पहले से दे रखी हैं, उसके आप रिहर्सल कर चुके हो. लेट इट बी. और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी हुई है, हर एक चीज को जो है आपने प्लान कर चुके हो, अब इवेंट को चलने दीजिए. Arrive at the event's location with volunteers and team members hours before the event time. Event time शुरू होने से कुछ घंटे पहले आप अपनी सारी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाइए. Check whether all the electronic equipments work properly. आप चेक कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे माइक्रोफोन, लाइट, स्पीकर, डीजे सिस्टम, साउंड सिस्टम, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, दीज आर ऑल वर्किंग प्रॉपर्ली. क्योंकि कई बार मौके के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी है, वो कई बार फेल हो जाती है अचानक से. तो ये ठीक भी होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए. सेट अप ए ब्यूटीफुल रिसेप्शन एंड हेल्प डेस्क. ये तो होना ही चाहिए क्योंकि आपकी जो पहली अट्रैक्शन है वह आपकी रिसेप्शन है और आपकी हेल्प डेस्क है. और आपके वॉलंटियर्स किस प्रकार से गेस्ट को डील करते हैं, हर गेस्ट को लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे VIP. एलोकेट स्पेस फॉर स्पॉन्सर्स टू प्लेस देयर बैनर्स. और जिन स्पॉन्सर्स ने आपका इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प की है, आपको पेमेंट की है, उनके बैनर्स को प्लेस करने में प्लेस एलोकेट कीजिए. Ensure that host anchor has details of VIPs to avoid any plunder. बहुत से VIPs हैं, ज्यादातर VIPs हैं जो कि अगर किसी का नाम गलत बोल दिया जाए, किसी का डेजिग्नेशन गलत बोल दिया जाए तो उसको अदरवाइज ले लिया जाता है. इसलिए किसी प्रकार का ब्लंडर ना हो. होस्ट या एंकर को VIPs का नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका हर चीज के बारे में पता होनी चाहिए. उसके अलावा जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए और क्या क्या उन्हें कब कब कौन कौन से स्लॉट में कौन कौन से स्पॉन्सर्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है या पब्लिसिटी करनी है, वो उनको पता होना चाहिए. उनकी पूरी तैयारी होनी चाहिए. हायर ए डेडिकेटेड फोटोग्राफर टू कैप्चर स्पेशल मेंबर, स्पॉन्सर, बैनर एंड की पीपल. तो फोटोग्राफर ऐसा हायर कीजिए जिसको पता हो कि कौन कौन से की पीपल है जिनको कवर करना है. ऐसा ना हो कि जब फंक्शन खत्म हो जाए तो आप देखते ही रह जाएं कि असल में आपने बुलाया किसको था और आया कौन है और कौन खा पी के भी चला गया. कंफर्म ए स्टॉक ऑफ फूड, वाटर, फ्लावर्स एक्सेट्रा. तो फूड, वाटर, फ्लावर्स जो है स्टॉक है आपके पास प्रॉपर होना चाहिए ताकि मौके के ऊपर कहीं भी कोई कमी ना रह जाए. तो जब इवेंट हो जाता है तो फिर इवेंट से बहुत कुछ सीखा भी जाता है. द इवेंट इज ओवर, यू रिसीव्ड एप्रिसिएशन फॉर योर एफर्ट्स, बट यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. बहुत सारी चीजें सीखने वाली भी थी इस इवेंट में. हमेशा इंप्रूवमेंट का कोई ना कोई स्कोप हमेशा रहता है. हर इवेंट के बाद जो अगला इवेंट होने वाला है वो पहले से अच्छा होता है. Thus, after the event, you should collect meaningful information from the participants. Participants से proper feedback लीजिए ताकि आपको पता लग सके कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या अच्छाइयां थी, ताकि अगली बार इसको आप और अच्छी तरह से कर सकें. Send feedback forms, gather feedback, understand participants' reactions, gauge expectations, and measure the information of your events. This will help you get valuable instruction for nourishing your managerial skills and shaping the future events based on the received feedback. और received feedback के बेस के ऊपर अब अपना जो सा नेक्स्ट इवेंट है उसको और भी अच्छा कर पाएंगे. So in conclusion, I would say event management is one of the such profession where fail has no hiding place. No matter what confidence or managerial skills you bring on board for the event, loopholes in any of the above mentioned stages and you will
be in embarrassing situations. So you should try to avoid blunders. आप कितने भी अच्छे मैनेजर क्यों ना हो, कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, पर यदि कोई ना कोई लूप होल रह जाता है किसी भी एक स्टेप में, इन 5 स्टेप्स में से, तो कई बार बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाता है और इंसल्ट भी हो जाती है। तो इसलिए बहुत कूल माइंड के साथ इवेंट को मैनेज करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करना चाहिए, ताकि इवेंट आपका एक बहुत सक्सेसफुल हो। और हर एक इवेंट के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं, और उस एक्सपीरियंस को बेनिफिट उठाकर नेक्स्ट टाइम जो आप इवेंट करते हैं वो उससे भी अच्छा इवेंट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. So if you have any of the queries in this, you can just message me or mail me. So definitely I will try to satisfy you. And at the same time, I will be sending you this PowerPoint presentation also and your PDF files also. You go through these. पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं. मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की खासियत ये होती है कि अगर अम्ब्रेला खुला होगा तो वो काम आता है, बंद अम्ब्रेला किसी काम का नहीं होता. अम्ब्रेला खुला होगा तभी वो आपको प्रोटेक्ट कर पाता है. तो यहाँ पर आपको दिमाग खोल के रखना है अपना, आपका माइंड एंड अम्ब्रेला दोनों खुले हों तभी काम देते हैं. सो आप ये सोच के चलिए कि आप कोई इवेंट मैनेज कर रहे हैं. यू आर ए इवेंट मैनेजर. जस्ट पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ एन इवेंट मैनेजर एंड देन स्टडी दिस सब्जेक्ट, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. और आपको मैं आज एक टास्क भी दूंगा. हमारे यूनिवर्सिटी में ठीक 1 महीने बाद कॉन्वोकेशन फंक्शन होना है. अब ये आप सब लोगों की ड्यूटी है, आप सब लोग इवेंट मैनेजर्स हैं, और आप लोगों को ये जो सा टास्क दिया गया है कि ये कॉन्वोकेशन की जो इवेंट है ये आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करनी है. तो आप लोगों ने क्या करना है, एक प्लान बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें पहले स्टेप से शुरू करके, राइट फ्रॉम गेटिंग ऑफ द आइडियाज, पहले स्टेप से शुरू करके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का लिस्ट बनाकर, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाकर कि क्या क्या आपने करना है, कौन कौन लोगों को आपने इनवाइट करना है, किस किस प्रकार के आपके गेस्ट होंगे, कौन से आपके हेल्प डेस्क होंगे, कौन सा आपका क्या क्या होगा. कंप्लीट आपने इवेंट मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है, और वो प्रोजेक्ट बनाकर मेरे को आफ्टर 1 वीक दिखाना है. तो 1 हफ्ते में आपने एज ए इवेंट मैनेजर वर्क करना है और काम करना है हमारे यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन फंक्शन के लिए. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप मेरे को कभी भी फोन करके भी पूछ सकते हैं, और मेल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में आप बहुत ही अच्छे इवेंट मैनेजर बनेंगे. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.